Good evening, students. Today I will discuss about the human development in India. First of all, I will discuss about the growth and development. Both growth and development refer to change over a period of time. Growth means quantitative and value neutral change. Second, positive or negative sign. Development means क्वालिटेटिव चेंज विच इज़ ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव. दोनों में अंतर आपको महसूस हो गया होगा. एक है वृद्धि, दूसरा है विकास. वृद्धि का परिणाम नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकता है, जबकि विकास का जो परिणाम होता है वो हमेशा सकारात्मक होता है. डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस. For example, if the population of a city grow from 1 lakh to 2 lakh over a period of time, we say the city has grown. एग्जाम्पल से साफ होता है कि जब किसी शहर की आबादी 1 लाख से 2 लाख होती है तो उस आबादी में वृद्धि होती है. Whenever if facilities like housing, provision of basic services and other characteristics remain the same, then this growth has not been accompanied with development. साथ साथ ये भी होना चाहिए कि सिर्फ जनसंख्या बढ़ने से उस शहर की तरक्की नहीं होगी, बल्कि उसके साथ साथ सहूलियतों का बढ़ना भी नितांत आवश्यक है. तभी हम कह सकते हैं कि वृद्धि के साथ विकास भी हो रहा है. द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल enjoy a country, the opportunities they have and freedoms they enjoy are important aspect of development. लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार हो, अवसर में वृद्धि हो, आज़ादी हो, इंजॉय के साधन बढ़े, तभी हम कह सकते हैं कि विकास हो रहा है. इन दिस रिगार्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल, डॉक्टर महबूबुल हक introduced the concept of human development. Dr. Huq has described human development, the in-laws people choice improve their lives. कहने का मतलब, जब हमारी आवश्यकताओं में इजाफ़ा हो जाए, बढ़ जाए, तो आप समझिए कि आपका विकास हो रहा है. अदरवाइज़ स्टैगनेट हो गया है या नकारात्मक है. Access to resource, health and education are the key area in human development. आवश्यक है कि संसाधनों में विकास हो, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो, शिक्षा में सुधार हो, तभी मानव का विकास मुमकिन है. इस डायग्राम से आप इस बात से भली भांति आप परिचित होंगे. नाउ 4 pillars of human development. Just as any building is supported by pillars, the idea of human development is supported by the concept of equity, sustainability, productivity and empowerment. These are 4 pillars for human development. Equity refers to making equal access to opportunities available to everybody. Sustainability means continuity in the availability of opportunities. अवसर में जब इजाफ़ा होता है, बढ़ता है. Then productivity means human labor productivity or productivity in terms of human work. काम करने की क्षमता बढ़ जाए, काम के अवसर बढ़ जाएं. Then empowerment, to have the power to make choices. और जब हम, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो या लेबर एम्पावरमेंट की बात हो या किसी भी गोशे को एम्पावर करने की बात हो, जितना एम्पावर्ड होगा उतना ही मानव विकास बढ़ेगा. नाउ व्हाट इज़ HDI? इट is a tool used to measure a country's overall achievement
in its social and economic dimension. Definition: the Human Development Index is a composite statistic of life expectancy. जिजीविषा इसे कहते हैं, जीवन प्रत्याशा, एजुकेशन शिक्षा, एंड पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय. These are indicators which is used to rank countries into 4 tiers of human development. ये 4 tiers क्या है? The Human Development Index is a measure of economic development and economic welfare. इसी के आधार पर हम ये तय करते हैं आर्थिक विकास और आर्थिक भलाई. Now, origin of HDI. Devised and launched by Pakistani economist Mahbubul Haq in 1990. Amartya Sen, you know, the Nobel laureate, and Mahbubul Haq worked upon the capabilities and functioning which provided conceptual framework. दोनों ने इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है. Published by United Nations Development Program UNDP. Factors considered for long and healthy life, knowledge and decent standard of living. ये जब तीनों बढ़ जाता है, जैसा कि डायग्राम बताया गया है, वो अपने आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इजाफा होता है. द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एग्जामिन्स 3 important criteria of economic development. फर्स्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इनकम लेवल्स. अब आप इसमें जब तुलना करेंगे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो ज़मीन आसमान का अंतर आपको मिलेगा. जापान के एक व्यक्ति की औसत आयु 90 से ज़्यादा है. हमारे देश में अभी हम 70 के आसपास पहुँचे हैं. शिक्षा का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बहुत सारे विकसित देशों में 100% साक्षरता है, 100% लोग शिक्षित हुए हैं. हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ की साक्षरता और शिक्षा का स्तर दोनों बहुत ही निम्न कोटि का है. साथ ही साथ इनकम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, इसमें भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन, काफ़ी इम्बैलेंसेस मिलता है. और जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होगा वहाँ तरक्की, स्मूथ तरक्की या होमोजेनस तरक्की नहीं मुमकिन है. इसलिए आवश्यक है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अवसर प्रदान किए जाए. क्रिएट्स एन ओवरऑल स्कोर बिटवीन 0 to 1. रैंकिंग निकालने के लिए 0 से 1 के बीच में ये रैंकिंग मानी जाती है. इंडिकेट्स हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जिसका 1 होता है और जिसका 0 है वो वेरी लो है. तो जितने भी विकसित देश हैं वहाँ का जो HDI है वो दिन पे दिन इम्प्रूव होता चला जा रहा है. विकासमान देशों के भी इम्प्रूव हो रहे हैं, लेकिन सबसे हालत ख़राब अफ्रीका के मुल्कों का है. वहाँ भी विश्व समुदाय को सोचना चाहिए, वहाँ भी शिक्षा, वहाँ के आय, चिकित्सा पे ध्यान दिया जाए ताकि वहाँ के लोग भी विश्व कम्युनिटी के साथ जुड़ सकें. मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट. द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स rank the countries based on their performance in the key area of health, education and access to resource. यही 3 क्षेत्र है जिसमें तरक्की होना, जिसमें सुधार होने की गुंजाइश है. हेल्थ. द इंडिकेटर chosen to access health is the life expectancy at birth. A higher life expectancy means the people have a greater chance of living longer and healthier lives. ये तभी मुमकिन है जब उनके दवा का इंतज़ाम किया गया, अच्छा खाना डाइट मिले, तभी ये मुमकिन है कि उनका हेल्थ इम्प्रूव होगा. दवा और डाइट, खान पान पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है. नाउ एजुकेशन. द एडल्ट लिटरेसी रेट एंड द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो रिप्रेजेंट्स एक्सेस टू नॉलेज. The number of adults who are able to read and write and the number of children enrolled in school show how easy or difficult it is to access knowledge in a particular country. अभी भी हमारे देश में बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं प्राइमरी लेवल से भी. प्राइमरी लेवल शिक्षा बहुत ही वीक है. निःशुल्क शिक्षा सबके लिए है,
इसके बावजूद बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के स्तर से कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में इनरोल्ड हों, उनको मिड डे मील दिया जा रहा है, उनको पोशाक दिए जा रहे हैं, उनको बुक्स दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी मिजाज, अभी भी वो इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट हो पाया। इसके लिए सरकार प्रयासरत है, वो होना अति आवश्यक है। नाउ एक्सेस टू रिसोर्स, संसाधन का बढ़ना निहायत आवश्यक है। जब तक संसाधन में इजाफा नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगा, हमारी क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक मानव विकास नहीं हो पाएगा। ये कुछ आपको फार्मूले दिए गए हैं। कैलकुलेशन ऑफ HDI, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशनल इंडेक्स, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूल इंडेक्स, इनकम इंडेक्स। इसके आधार पर इन टोटलिटी हम HDI कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल, कैलकुलेटिंग HDI ऑफ इंडिया। इंडिया का एक उदाहरण दिया गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 0.67 है, एजुकेशन इंडेक्स 0.49 है, इनकम इंडेक्स 0.59 है। ओवरऑल हम देखते हैं तो भारत का जो HDI है वो 0.58 है, 50 से 0.5 से ज़्यादा है। धीरे धीरे इसमें हम सुधार कर रहे हैं और सुधार करने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल कंपैरिजंस, often smaller country have done better than longer ones in human development. Similarly, relatively poorer nations have been ranked higher than richer neighbors in terms of human development. For example, Sri Lanka, Trinidad and Tobago have a higher rank than India in the human development index despite having smaller economics. आप देख लीजिए, श्रीलंका का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत से बेहतर है। भारत नाम बड़ा विशाल मुल्क है, तमाम संसाधन है, इसके बावजूद भी हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रिनिडाद टोबैगो और श्रीलंका से पीछे है। ये सोचने का मंजर है। सिमिलरली विद इन इंडिया, केरला परफॉर्म्स मच बेटर देन पंजाब एंड गुजरात इन ह्यूमन। भारत में भी आपको क्षेत्रीय विषमता मिलती है, पर कैपिटा के हिसाब से, रिसोर्स के हिसाब से, स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल के हिसाब से इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। रैंकिंग बेस में इस 3 रैंक बनाए गए हैं। वेरी हाई ऑक्यूपाइड रैंक जो 0.808 है, वो तकरीबन वर्ल्ड के 49 कंट्री हैं। हाई रैंकिंग बिटवीन 0.7 टू 0.807 53 कंट्रीज़ हैं। मीडियम रैंकिंग 0.55 टू 0.69 42 कंट्री हैं। एंड लो बिलो 0.55 43 कंट्री है। तो ये इसमें सुधारने की ज़रूरत है। नाउ ग्लोबल HDI रैंकिंग टॉप 10 कंट्रीज़। विश्व में नॉर्वे का HDI 0.94 है, ऑस्ट्रेलिया का 0.93 है, स्विट्ज़रलैंड का 0.91 है, हॉलैंड का 0.91 है, USA का 0.91 है, जर्मनी का 0.91 है, न्यूजीलैंड का 0.91 है, कनाडा का 0.90 है, सिंगापुर का 0.90 है, डेनमार्क का यानी 0.9 है, सभी का 0.9 के ऊपर है। अब आप कल्पना कर लीजिए, ऐसे विश्व में लोएस्ट 10 कंट्रीज़ इन HDI है। मोज़ाम्बिक है अफ्रीका का, गुयाना है, बुरुंडी है, बुर्किना फासो है, फिर इरिट्रिया है, सियरा लियोन है जहाँ का 0.37 है, चाड का है 0.32 है, कांगो का 0.33 है, नाइजर का 0.33 है। कितना दयनीय स्थिति है, सुधारने की ज़रूरत है। और भारत में HDI पहले से इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए अभी उतना नहीं हुआ है। बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और प्लानिंग कमीशन भी इस पर काम कर रही है, नीति आयोग भी काम कर रही है। इसके बावजूद भी जितना हमारा HDI रैंकिंग होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। अभी भी हमें इस क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। डिस्पैरिटी को दूर करने की ज़रूरत है। उसके बाद लोगों को इस क्षेत्र में फ्रीडम देने की ज़रूरत है। जहाँ तक ट्रेंड का सवाल है, इंडिया का देख लें आप, वो स्थिति बहुत ही दयनीय है। इंडिया बहुत ही नीचे है, वर्ल्ड से भी नीचे है। तो ये तभी सुधरेगा जब इसके क्षेत्र में हम काम करेंगे। स्टेट वाइज भी HDI में काफ़ी फ़र्क है। 0.7 के ग्रीन से दिखाया गया है, 0.6 टू 0.7 को येलो से दिखाया गया था,
0.5 रेड से दिखाया गया है। तो इस तरह से आप जब देखेंगे तो लाइफ ह्यूमन डेवलपमेंट की स्थिति भारत में उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। जहाँ तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी का सवाल है, औसतन भारत की जीविका या जीवन प्रत्याशा वो 70 के आसपास है। उसमें केरल का 74 है, पंजाब का 69 है, महाराष्ट्र 62 है। वहीं कुछ ऐसे राज्य हैं, बिहार और मध्य प्रदेश, जिसका 50 और 52 है। तो बहुत ही चिंताजनक है। केरल का जो हाईएस्ट एसडीआई है उसके पीछे यही वजह है कि वहाँ की लिटरेसी रेट तकरीबन 93% है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 74 है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो है 1080 पे 1000 है, लीस्ट करप्टेड स्टेट है, क्लीनलीनेस है, हेल्दीएस्ट स्टेट है। ये सब कुछ वजूहात हैं जिसके बना पर वहाँ का एसडीआई बहुत बेहतर है। अन्य राज्यों को भी केरल को मॉडल मान के काम करना चाहिए, तभी हम सर्वांगीण हमारा एसडीआई भारत का इम्प्रूव हो सकता है। इम्पोर्टेंस एसडीआई गिव्स एन ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट डज गिव ए रफ एबिलिटी टू मेक कंपैरिजन ऑन इशू ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर much more than just using GDP statistics. So it gives idea regarding area of development which requires improvement. Statistics gives better decision making for area having wide disparity, more focus on social and human development rather than only capital accumulation and growth. Now limitations of HDI: wide divergence within countries. For example, countries like China and Kenya have widely different HDI scores depending on the region in question. North China poorer than Southeast. Economic welfare depends on several other factors such as threat of war, levels of pollution, access to clean drinking water. ये सब हमारे HDI को मुतासिर करते हैं। GNI does not show how the income is spent by the government. Some countries spend more on military than health care. ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। हेल्थ को पहले कंसंट्रेट करना चाहिए। अभी आप देख लें कोरोना काल में राज्यों में हेल्थ सर्विसेज की क्या स्थिति है, ये आपको क्लियर कट हो जाएगा। When knowledge is measured, it only takes into account what children learn at school, not in the family, and so maybe knowledge is maybe distorted it if the family play more a role of in education in the home. Longevity can also be distorted as the life expectancy of a person does not consider how healthy the life was late. Life expectancy जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने का जो स्पैन है वो तभी बढ़ता है जब उसका हेल्थ सही हो और कंफर्टेबल जोन में हो, चिंता फिक्र न हो, तभी जीवन प्रत्याशा बढ़ता है। अदरवाइज़ अगर वो रोगों में मुबल्लिश है, कई तरह के रोग में गिरफ्त है, तो बड़ा मुश्किल है। भूटान का मैं आपको उदाहरण दूँ। Bhutan is the only country in the world is officially proclaimed the gross national happiness as the measure of the country progress. छोटा सा देश है पहाड़ों के बीच में, विश्व का सबसे ज़्यादा वो हैप्पीनेस खुशहाल देश है। उसके पीछे यह है कि बहुत कुछ लालसा नहीं है, बहुत कुछ जो हड़पने की उसको फिक्र नहीं है। Material progress and technological development are approached more cautiously, taking into consideration harm they might bring to the environment or the other aspect of cultural and spiritual life of the Bhutanese. काफ़ी सांस्कृतिक तौर पे और आध्यात्मिक तौर से वे अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ जोड़ के रखते हैं और प्रदूषण से भी दूर रहते हैं। यही एक वजह है कि वहाँ का
हैप्पीनेस इंडेक्स वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। भारत भी पड़ोसी मुल्क है, उसे भी उससे सीखने की ज़रूरत है। वाई इंडिया इज़ लैगिंग इन SDI, क्यों पीछे है भारत? कई वजह है। पहला है कि लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंडिया लिव इन स्लम, दैट इज़ अराउंड 200 million people. 42% children below 5 years age are underweight and 59% stunted. Low spending और education by the government, बहुत खर्च होता है शिक्षा पे. Lack of scheme of urban care like NRHM. India treat in environment poorly, rank 125 out of 32 countries in a study done by Yale. निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि the SDI gives a overall index of economic development. There are certain differences among different states' development conditions, so there must be equal opportunity for development for all. सारे 29 राज्यों को समान अवसर मिलने की ज़रूरत है, तभी हम मानव विकास में सुधार कर सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ राज्यों में मानव विकास सुधर जाएगा और कुछ में पिछड़ जाएगा, फिर जस का तस रहेगा। सम इम्पॉर्टेंट इशू आर मिसिंग इन SDI सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम इकोनॉमिक फैक्टर्स। आप जानते हैं कि भारत में हर साल कोई न कोई दैवीय आपदा आती है और जो कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार है उसको तहस नहस कर देती है, चाहे वो बाढ़ के माध्यम से हो, चाहे साइक्लोन के माध्यम से हो, चाहे सुनामी के माध्यम से हो, चाहे ड्रॉट्स के माध्यम से हो, चाहे फ्लड्स के माध्यम से हो, चाहे लैंडस्लाइड्स के माध्यम से हो। तो राष्ट्र जो है इस आपदा से बचने के लिए या उसको रोकने के लिए अभी अपने आप को अक्षम मानती है, और यही स्थिति है कि हम जो है हर साल अधिकांश राज्यों में दैवीय आपदाओं से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर देते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उस स्तर का नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। अब हमने कुछ क्वेश्चन इस पे दिया है, इसको आप पढ़ के कर लीजिएगा। कुछ MCQ भी बनाए हैं, उसमें आपको फ़ौरन देख लेना है कि विच 3 इंडिकेटर्स आर यूज्ड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट SDI। अब आप ऑप्शन दिए हैं, इसको आपको देखना है। सीधा से दूसरा है द रिलीजेज़, द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है। इस तरह से तकरीबन 8 से MCQ बने हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा। और थैंक यू। कोई अगर एनी क्वेरी तो आपका वेलकम है, आप कभी भी आप इस चैप्टर के बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू।